Hello everyone, welcome to our session. Today we will be conducting the mock interview of one of our mates. Miraj, welcome here. Thank you, ma'am. Okay, so can you give me your introduction? Thank you ma'am, for giving me this opportunity. My name is Muhammad Miraz Minatullah Ansari. I am born and brought up in the land of Mithila, Madhubani. I have done my schooling in Madhubani. Then I shifted to Darbhanga. There I completed my BTech in mechanical engineering. My passing out year was 2020. After passing out, I have started preparing full time for banking. Some of my hobbies are playing, watching football, and watching TV series. That's all? Yes, ma'am. Okay. So you said you are from Madhubani, that is in Patna, right? No. It is around 200 kilometers from Patna. Okay, so can you tell me if will be going to Madhubani, where I can go? Some historical places or very good places I can visit to? Madhubani, it is near the border of Nepal. You can explore Jayanagar. It is in Nepal. Half is in Nepal, half is in India. It is close to Darbhanga Maharaj. He is a very prominent leader of Bihar. You can also try Mithila paintings. It is originated. It also got GI tag, and the Mithila Makhana. It also got GI tag. You can try it. Okay, so when did they got the GI tag? Can you name the year? Mithila Makhana, it got GI tag in 2020 around. It was renamed in 2021 Mithila Makhana. Earlier it was, I don't know the name, but it was known by different name. Okay, you know that name? What was it known before? It was Makhana only. Later it was specifically changed to Mithila Makhana. Okay. मिराज, आपका नाम बहुत यूनिक है. आपके नाम का मतलब क्या है? यस मैम, बेसिकली मेरे नाम का मतलब बुलंदी होता है. इसकी एक इस्लामिक इम्पोर्टेंस भी है. वो ये है कि जब हमारे प्रोफेट थे मोहम्मद साहब, वो जब तो जो सेवेंथ हेवन होता है हम लोग में, तो वो सेवेंथ हेवन पे जाके उन्होंने अल्लाह से मीट किया था, तो उस डे का भी नाम मिराज है और ये भी है. ओके, गुड. सो आपने ग्रेजुएशन किस में की है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो व्हेन डिड यू पास आउट? 2020, but it was stretched to 2021 late session. Okay, due to coronavirus, no? Yes. Okay. So I have seen in your biodata that you have written that plus 2 you have passed in 2016. But in Yes, ma'am. first semester of college, how come in 2017? Did you take some gap? नो मैम, द एग्जाम बेसिकली वो लेट कंडक्ट हुआ था. वो होना था 2016 में, बट वो कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से 2017 में कंडक्ट हुआ था. उसकी Okay, so रिजल्ट you भी don't डिले have हुई थी. gap, ना? नो मैम. गैप तो नहीं है ना आपका? ओके, नो मैम, नो गया. ठीक है. So you told about some of your hobbies, है ना? Can you यस मैम. tell me, firstly, let's talk about the TV series. Which kind of TV series you generally follow? Like which genre? I like crime genre, basically syndicate crime, like Breaking Bad, Better Call Saul, this type of. Okay, so which series have you watched? I am currently watching Better Call Saul. It was a prequel of Breaking Bad. Okay, so how is it? It is good. It is also getting its season 6 in coming months. It is Okay, basically about a lawyer who is basically a crime lawyer. तो वो अपनी अर्ली लाइफ के बारे में उसका पूरा दिखाया गया है. How he started, how he got this much fame, how he gone deep into crime. बस वही सब. okay, that means TV series revolves around the lawyer, है ना? Yes ma'am. Okay, so फुटबॉल पे आती है. फुटबॉल में आपका आइडल कौन है?
मैं मैम वो तो मेरा आइडल तो एक है, फ्रेंच फुटबॉलर थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं अब, जिनेडिन जिडान। करेंटली आई पैशनेटली फॉलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, तो इंडियन फुटबॉलर्स नहीं आपको पसंद? जैसे सुनील मैं मैं छेत्री है मैं हमारे, बहुत अच्छे पसंद है हैं वो। मुझे। तो आपने मेंशन जी, तो नहीं किया। सुनील छेत्री है, मैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बेचेंग भूटिया, मैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम्म। दे और आर वो डूइंग वेरी अभी, गुड इन देयर फील्ड्स। यस मैम, currently he scored around 70 plus goals, which is he created history right now. He was the second all-time current active goal scorer right now, हम्म। सुनील छेत्री। तो आप खेलते भी हैं फुटबॉल? मैंने स्कूल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, कॉलेज में भी खेलता था, बट लेटली आई एम नॉट प्लेइंग। ओके, सो मतलब कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है रिलेटेड फुटबॉल्स? मैंने इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था अराउंड 2008-9, व्हेन आई वाज इन 6 और 7। वो हैदराबाद ओके, में कंपटीशन हुआ था, शायद हम लोग थर्ड प्लेस पे आए हुए थे। इन फुटबॉल? यस मैम। तो आपने फुटबॉल में आगे करियर क्यों नहीं किया अगर आप अच्छे हैं फुटबॉल में तो? मैम, मैंने फुटबॉल को एज ए हॉबी रखना चाहता हूँ, मैं उससे कभी करियर ऑब्जेक्टिव नहीं लेना चाहा। मेरी फुटबॉल नॉलेज वगैरह ठीक है, बट मैंने उसे एज ए करियर कभी सोचा ही नहीं। ओके, तो व्हाट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए भी आपने करियर में परस्यू नहीं किया बीटेक के बाद? बैंकिंग तो टोटल डिफरेंट सेक्टर आ गया ना मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल के बाद बैंकिंग में कैसे? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah. हाँ, आई वाज आस्किंग कि मैकेनिकल भी तो टोटली डिफरेंट फील्ड है बैंकिंग से, तो मैकेनिकल के बाद आप बैंकिंग में कैसे आ गए? मतलब कैसे इंटरेस्ट बना आपका बैंकिंग सेक्टर में? नेट नहीं काम कर रहा है, पॉज करो। हेलो, एम आई यस ऑडिबल? मिराज, यस यू आर ऑडिबल, प्लीज यस मैम। कंटिन्यू। तो सर मैम, मैंने 2 बार गेट एग्जाम्स दे चुका हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं पीएसयू में वर्क करना चाहता था, बट वो सीट्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही हैं उस फील्ड में, तो मैंने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली नहीं। मैंने दोनों बार फेल कर गया। तो लेटली मुझे पता चला, मतलब एज ए पढ़ते पढ़ते, कि मेरी एप्टीट्यूड ठीक है, मेरी इंग्लिश ठीक है। तो मैंने बैंकिंग सीखा अपने एल्डर से, क्योंकि मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से ही आता हूँ। तो मैंने उनसे ओके, बात वगैरह की, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि यू कैन ट्राई बैंकिंग। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने एज ए बैंकिंग करियर लेना चाहा। ओके, तो इससे पहले भी आप पेपर्स दे चुके हैं, कोई एग्जाम्स फिल किया आपने? मैंने मैम आरआरबी क्लर्क का लास्ट ईयर दिया था, वो कट ऑफ से मैं रह गया था। दिस ईयर ओनली एसबीआई पीओ, ओके, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो उनका भी मेंस दिया है आपने? यस मैम। ओके, गुड, वेरी गुड। Okay, so can you tell me that since you are from mechanical background, then how will your mechanical field will help in the banking sector? मैम, मेरा जो वो सर्विस सेक्टर का वर्क हो गया, और बैंक्स का मेन जो वर्क होता है मैम, वो लेंडिंग का वर्क होता है। और लेंडिंग का वर्क में से मैम, अर्बन लेंडिंग में इंडस्ट्रियल लेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पढ़ा हुआ है, तो मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट बाकी से थोड़ा बहुत बढ़िया ही होगा। तो मैं वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं एफिशिएंटली वहाँ पे डीलिंग्स वगैरह कर सकता हूँ। Okay, good. अच्छा, आपने कुछ मेंशन किया था इन योर बायोडाटा रिगार्डिंग द टेक फेस्ट।
कि आपने ऑर्गेनाइज यस मैम। कराई है, तो मतलब वर यू द लोन ऑर्गेनाइजर और या फिर आपके साथ कोई और भी था जो ऑर्गेनाइज करा रहा था? No ma'am, it was organized by whole batch, 2016 batch. It was the first tech fest happened in our college, ओके, सो ज्ञानिकी व्हाट वर योर 2017. रोल, व्हाट वाज मैम योर रोल इन द टेक फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन? म- मैम मेरा टेक से बहुत ज़्यादा रुचि है, तो मैंने गेमिंग सेक्शंस होते हैं जिसमें मल्टीप्लेयर्स गेम्स होते हैं, तो मैं उसका ऑर्गेनाइजर था। बेसिकली जो लैब वर्क था वो सारा मैंने सेटअप वगैरह सारा मैंने ही किया था। ओके, जी और भी कोई इवेंट है इसके अलावा जो आप ऑर्गेनाइज करा चुकी हैं? मैम, बहुत सारे इवेंट थे, लाइक रोबो कॉम्पिटिशन्स थे, अदर लिटरेचर वगैरह थे, तो वो सब में मैंने नहीं किया था, मेरा बस इधर ही का था। ओके, तो आप पार्ट भी लेते रहे हैं इवेंट्स में? यस, मैं कंटिन्यूअसली पार्ट लेता था। ओके, ठीक है। So, can you name some of your qualities? Like, what are your strengths that can help us in the banking sector? कुछ आप में कुछ खूबियां हो जो हमें और अच्छी हेल्प कर सकती है? मैम, बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहता हूँ। लाइक मैंने अगर कुछ गोल दिए हैं तो मुझे उसे पूरा करना है। बैंक्स का हम्म। मेन चैलेंज ही होता है कि आपको जो टारगेट्स मिले हुए वो अचीव करना। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ यूज कर सकता हूँ। ओके, तो कोई आपकी वीकनेस हो that you want to improve in future? मैम, मुझे अगर एक वीकनेस बताई जाए तो वो मैम कि मुझे ना करने में किसी प्रॉब्लम होती है। लाइक इफ यू वांट हेल्प फ्रॉम मी, आई विल हेजिटेट अबाउट सेइंग नो। ये मैं थोड़ा Regarding the सुधारना चाहता health? हूँ। ओके, यस मैम। तो आप कुछ वर्क कर रहे हैं इस पे? किस तरह से आप इसको सुधार सकते हैं? मैम, मैं थोड़ा अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं SBI PO में जाता हूँ तो मुझे पब्लिक डीलिंग्स करनी पड़ेगी, और सारे डीलिंग्स को मैं पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकता, तो वो मुझे वहाँ ना करना पड़ेगा, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। ओके, so since Miraj, you are from mechanical, let's ask some question from your field also. ठीक है? Is it fine? वो अभी टच में नहीं है, रिकॉल नहीं कर पाऊंगा मैं। हम्म। रिकॉल नहीं कर पाऊंगा मैं, बहुत दिनों से मैंने पढ़ाई नहीं की थी मैकेनिकल चलो इंजीनियरिंग ट्राई करते हैं, लेट्स की। ट्राई। जी ओके मैम। अच्छा, मतलब बहुत आई विल आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपने अपने फुल मैकेनिकल में पढ़े होंगे। लाइक आपने सस्पेंशंस पढ़े होंगे अपने, है ना, मैकेनिकल में? यस मैम। सस्पेंशंस की वर्किंग की हुई है। कोई भी तीन तरह के मेरे को सस्पेंशंस के नाम बता दो, एनी थ्री यू कैन रिमेम्बर राइट नाउ। सॉरी मैम, आई कांट रिकॉल। लाइक लीफ स्प्रिंग, ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक सिक्स सेमेस्टर में आता है लीफ स्प्रिंग, इसकी वर्किंग वगैरह आती है। करें लीफ स्प्रिंग बेसिकली की है? इस पे तो नहीं मैम, मैं मैन्युफैक्चरिंग मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं उस पे कुछ बता सकता हूँ। ओके, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड उसमें क्या था, मतलब व्हाट वाज द सिलेबस, ये उसमें किस तरह की चीजें आती थी? उसमें मैम बेसिकली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक मोल्डिंग से होते हैं, कास्टिंग से होते हैं, कटिंग्स हम्म। वगैरह होते हैं, उन सब से रिलेटेड था उसमें। लाइक सैंड एब्रेजिव्स वगैरह यूज होते हैं टू गुड, लाइक रॉ मटेरियल्स हमारे पास आता है तो कैसे हम उसे हीट ट्रीटमेंट करके उसे लाइकवाइज बनाते हैं, और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कैसे। इस पे मैं IIT पटना से मैंने एक वर्कशॉप भी किया हुआ था अराउंड 2019। ओके, तो आपके मतलब बीटेक में एक इंटर्नशिप भी लगती है ना, ऑफ सिक्स यस मैम। मंथ्स एट द लास्ट यस मैम। सेमेस्टर योर सेकंड लास्ट, आपने कहाँ लगवाई थी? मैम, मैंने लोकली किया था। इट इज ए महिंद्रा प्लांट, वहाँ पे जो और एयर कंडीशनिंग थी उस पे मैंने किया था।
ओके, सो व्हाट वाज योर रोल इन द इंटर्नशिप? आपको क्या जॉब उन्होंने दी थी कि क्या करना है आपको? अब बेसिकली वो जो कंप्रेस करते हैं वो उसमें वर्क कैसे करती है, लाइक उसमें नॉर्मल अगर एसी होता है तो उसमें कंप्रेसर्स वगैरह यूज होते हैं, तो उसमें एयर फ्लो को खींचा जाता है, इसमें एयर फ्लो होता रहता है कंटिन्यूअसली, तो उस पर वर्क किया था मैंने। ओके, तो मिराज एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, फिर देन वी यस विल मैम। मूव टू बैंकिंग सेक्टर, देन उससे यस मैम। क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक कॉपर है, एक स्टील है, एक ब्रास है। इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा तेज हीट कौन कंडक्ट करेगा? कॉपर, स्टील और ब्रास। मैम कॉपर आई थिंक। बी कॉन्फिडेंट इफ यू नो द यस। आंसर। चलो, शैल वी मूव टू द बैंकिंग नाउ? बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ी सी देखते हैं आपकी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो, can you tell me the type of loan accounts? What are the type of loan accounts? लोन बेसिकली मैम 3 टाइप्स होते हैं, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट और बिल एक्सचेंजेस। नहीं, ये तो आपने उनके अंदर का बता दिया ना। आई एम आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ लोन अकाउंट्स, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन अकाउंट, दैट आर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, वो पूछा। चलो, आप मुझे बता दीजिए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क होता है? कैश क्रेडिट में बेसिकली होता यह है कि अगर हमने लोन सैंक्शन करवाई है तो वो डायरेक्ट हमारे जो एलिजिबल अकाउंट होती है वहाँ क्रेडिट होती है, और हमने जितनी अमाउंट विड्रॉ किए हैं बस उसी पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये एक फीचर होता है जो करंट अकाउंट्स होल्डर्स होता है उनको मिलता है, वो अपनी विड्रॉल से ज़्यादा डिपॉजिट निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने बोला कैश क्रेडिट में कि जो भी हमारा लोन सैंक्शन होता है वो हमें मिल जाता है, देन व्हाट इज द यस। डिफरेंस बिटवीन द टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट? टर्म लोन और कैश क्रेडिट में क्या फर्क हुआ? टर्म लोन में भी हमें लोन ही प्रोवाइड हो रहा है ना। जैसे अगर मुझे लोन चाहिए किसी भी चीज के लिए, से मैंने अपना घर बनाना है, आई हैव आई हैव टू गेट लोन, तो यस मैम। मुझे वहां से लोन मिल जाएगा, टर्म लोन से भी मिल सकता है। तो टर्म लोन और कैश क्रेडिट में क्या फर्क रहेगा? कुछ तो फर्क होता है ना, तभी उनका नाम डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है। टर्म लोन मैम, टर्म तो टाइम से रिलेट कर सकते हो उसे, हम्म। फिक्स टाइम हो सकता है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। हम्म, तो मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया था कि जैसे अगर मैंने घर बनवाना है तो मैं टर्म लोन लूंगी। कैश क्रेडिट होता है लेस देन 1 ईयर के लिए दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए होता है कि आपको थोड़े पैसे दे दिए, उधार दे दिए। लेकिन टर्म लोन इज कि हमें एक लंबे टर्म के लिए लोन चाहिए। जैसे लेट्स सपोज, जैसे घर बनाना है, 25-30 लाख लग जाते हैं हमारे, तो आई नीड लोन फॉर 20 ईयर्स, तो मैं टर्म लोन लूंगी, मैं कैश क्रेडिट क्यों लूंगी? ठीक है ना? वर्किंग ओके मैम। साइकिल के दौरान लेना होता है वो कैश क्रेडिट होता है। अच्छा, मुझे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस बता सकते हो? सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों मैम डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं, बट उसमें डिफरेंस ये है कि सेविंग अकाउंट में हमें मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट करेंट अकाउंट में हमें कुछ चार्जेस पे करते हैं वो अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। करेंट अकाउंट वो बिजनेसेस के लिए जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है, बट सेविंग्स अकाउंट ये विड्रॉ सिंपल टर्म डिपॉजिट के लिए यूज किया जाता है। ओके, आप बता सकते हैं इस टाइम पे कितना सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है? आई डोंट नो द एग्जैक्ट डाटा में। एनी बैंक, आपका कौन सा बैंक है? इन विच बैंक यू हैव योर अकाउंट? आई हैव अकाउंट इन यूको बैंक। तो आपको यूको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग पर? इट इज लेस देन 2% मैम। लेस देन 2%? यस मैम, बहुत ही मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे मिलती है।
कुछ बैंक्स इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0. मेरा बैंक तो 4% दे रहा है अभी। चलो ठीक है। चलो, कैन यू नेम सम क्वालिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद अ गुड प्रोहिबिटरी ऑफिसर। अगर आप कल को पीओ बन जाते हो, लेट्स सपोज आप सिलेक्ट हो गए, तो क्या यस मैम. क्वालिटीज एक एक्वायर होनी चाहिए पीओ ऑफिसर में जो उसे सबसे अलग स्टैंड आउट करवाएगा? मैम अगर क्या वो मैम बेसिकली वो टीम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी क्वालिटीज को दूसरों में ट्रांसफर करने का भी उसमें कैपेसिटी होना चाहिए. लाइक वो अगर इफिशिएंट है तो दूसरों को भी इफिशिएंट टेक फ्रेंडली बना सकता है. और वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और उसके जो टारगेट्स है उसको लेके उसे हमसे मोटिवेटेड रहना चाहिए. उसे लाइबिलिटी नहीं उसे समझना चाहिए, तो वर्क करना चाहिए. और कस्टमर इंटरेक्शन मैम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे हमेशा कूल रहना चाहिए. सो कैन वी से कि उसकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए ना? यस मैम डेफिनेटली. हाँ, मुझे दो क्वालिटीज मैं बताती हूँ, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा। सम पीपल थिंक दैट बोथ आर द सेम, बट मुझे लगता है इसमें एक डिफरेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ, some person have a leadership quality and there is one person who have a team work quality, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम टीम प्लेयर बेसिकली वो सबको साथ लेने का चलता है, बट लीडरशिप में कभी कभी मैम एरोगेंसी आ जाती है, तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है. लाइक आई एम ऑल इन ऑल, मेरे अंदर सब है, तो वो कभी कभी निगेटिवली इम्पैक्ट डालता है. और टीम प्लेयर्स में वो बेसिकली सबको साथ लेके चलेंगे तो इफिशिएंट होगा. अगर 2-3 लोग साथ में वर्क करेंगे तो वो वर्क जल्दी कंप्लीट हो सकता है. But हम वर्क उन्हीं के साथ कर सकते हैं ना, दैट आर इन आवर टीम। अगर कोई पर्सन आपके टीम में नहीं है, लेट्स से ही इज जूनियर टू यू, जैसे अगर यस मैम. आपके ऊपर मैनेजर है, वो तो आपके लीडर ही हुए ना। दे कांट यस. वर्क अलोंग विद यू इन द टीम, सो दे शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। दे शुड नॉट हैव अ टीम वर्क क्वालिटी। उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर पीओ है एक, वो क्लर्क यस. के साथ दे आर नॉट वर्किंग इन अ टीम वर्क। क्लर्क को जो जॉब अलग है, पीओ का जो है स्लाइटली वर्क अलग रहेगा। तो दे हैव टू बी अ गुड लीडर ऑल्सो, जो उनको गाइड कर सके कि आपने ये काम करना है, और उस लीडर को काम कराना भी आना चाहिए। तो वुड यू से गुड. कि आपका अगर मैनेजर है तो वो मतलब घमंडी है? नो मैम, कभी कभी इनइक्वालिटीज हो जाती हैं ऐसे. अगर इफ आई एम इन हायर पोजीशन तो काफी दफा देखने को मिलता है इन रियल टाइम, रियल वर्ल्ड ऑल्सो. मैं कभी कभी ब्रांचेस में जाता हूँ, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था. ओके, तो अगर मैं आपसे हायर पोजीशन पे रहूंगी अगर कल को, तो विल यू कंसीडर मी आल्सो एज एरोगेंट? ये मैम तो भैया एरोगेंट है, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। विल नो यू? मैम, लीडरशिप क्वालिटीज कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है, वो बेसिकली बहुत कम केस में होता है. Okay. So, whenever answering a question, we should always take a positive aspect of anything. Okay. यस मैम. अच्छा, so let's move. There are two terms. Okay. There are terms like letter of credit, and one is their bank guarantee. So, what is the major difference between these two? Bank guarantee and letter of credit. सॉरी मैम, आई कैंट आंसर. Okay. चलो, slightly basics पे आते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक कस्टमर है, ही वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट। उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, या उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? बैंक का तो मिनिमम एज तो अभी जनधन अकाउंट में देखा जाता है कि वो सर मैम बच्चे भी खुलवा सकते हैं, तो वो एज की क्राइटेरिया तो आई थिंक नहीं है. बट उनके पास एक रेसिडेंस का रहना चाहिए, प्रूफ कि वो इंडियन है. और अगर एनआरआई कोई आ रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए. और एनआरआई के लिए कौन से अकाउंट्स खुलते हैं? नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुल जाते हैं एनआरआई के लिए? नो मैम, उनका अलग अकाउंट एनआर ऐसे कुछ करके अकाउंट होता है. एनआरओ अकाउंट्स हो गए।
अच्छा, केवाईसी के बारे में बता सकते हो कुछ? व्हाट इज केवाईसी एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? केवाईसी मैम अभी रिसेंटली वो क्रेडिट चेक करने के लिए एक बहुत यूजफुल एलिमेंट हो जाता है। इसका मतलब नो योर कस्टमर हो गया। ये मैम बेसिकली रिस्क चेक करने के लिए कि अगर कोई मीडियम रिस्क है, कोई हमारे पैसे लेके लोन डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट लाया गया था और वो अभी भी वर्किंग में है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा रिस्क, कोई रिस्की कस्टमर जिसकी क्रेडिट अच्छी नहीं है, वो टाइम पे लोन जमा नहीं करता है, उसे हर 2 साल पे करवाना पड़ेगा। ऐसे ही टर्म डिफाइन किए गए कि 8 साल में, 10 साल में, ऐसे करके मीडियम रिस्क, लो रिस्क कस्टमर्स होते हैं, उनको कैटेगरिकली बांटा जाता है। केवाईसी करवाते कैसे हैं? हम अगर केवाईसी में मैंने जो अपनी केवाईसी करानी है, कैसे कराऊं? मैम मैं अगर केवाईसी करवानी होती है तो हम बैंक में जाते हैं, वहाँ के स्टाफ से अपनी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई विच करते हैं। डॉक्यूमेंट? विच डॉक्यूमेंट? आई एम आस्किंग अबाउट द डॉक्यूमेंट। कौन से इट डॉक्यूमेंट कैन बी चाहिए मुझे इट केवाईसी के कैन लिए? बी पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड के साथ अकाउंट लिंक कराना है डिफरेंट प्रोसीजर। केवाईसी के लिए वी नीड द आधार कार्ड। आपने पेटीएम में भी करवाया होगा। अगर यस आपने मैम। बैंक में नहीं भी आपको याद, पेटीएम में आजकल चलता है कि वी हैव टू डू द केवाईसी, देन ओनली वी कैन सेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। यस केवाईसी कराओ, बार बार आपको मैसेजेस आते हैं। सो केवाईसी इज द नो योर कस्टमर, जिससे यस मतलब मैम। बैंक को आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस बंदे की आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द कस्टमर। तो एक तरह की श्योरिटी हो जाती है बैंक को कि ये कोई मिस यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी हैव हिज डिटेल। अगर कोई मिस यूज होता है, वी कैन रीच हिम। थैंक यू मैम फॉर दिस। अच्छा, क्रेडिटर और डेबिटर कौन होता है? किसको क्रेडिटर कहेंगे, किसको डेबिटर कहेंगे? क्रेडिटर और डेबिटर मैम ये तो बैंक के ही रोल्स हो गए। हु इज द क्रेडिटर? क्रेडिटर मैम बैंक अगर लोन्स वगैरह देती है तो वो क्रेडिट कर रही है, तो वो क्रेडिटर हो गई। और डेबिटर मतलब हम अगर अपने अकाउंट से अपनी डिपॉजिट विड्रॉ करें तो डेबिट कर रहे हैं, तो वो हम डेबिटर हो गए, कस्टमर। So, can a single party be both creditor and debitor? If we take an example of बैंक क्रेडिटर और डेबिटर दोनों हो सकता है एक टाइम पे? यस मैम, बैंक दोनों रोल परफॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएटरी रोल परफॉर्म करते हैं, तो उनको दोनों रोल परफॉर्म करना पड़ता है। राइट। अगर वो हमें पैसे दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लोन्स, देन ही इज द यस मैम। क्रेडिटर। यस मैम। अदरवाइज जैसे अगर हम उनको अपने पैसे जमा करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट और इन द एफडी, then they are the debitor and we are the creditor. So you can say like that. Okay. What are NPAs? Have you heard about NPAs? यस मैम। So can you enlighten me? What is NPA? Why is it used? एनपीए मैम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर ऐसे लोन होते हैं जो अगर हम लगातार 3 महीने उनकी नहीं इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते हैं, तो उन्हें एनपीए कर दिया जाता है। इनको कैटेगरिकली डिवाइड किया जाता है, लाइक 90 days to 1 year, 1 year to 2 year, 2 year plus more, इस तरह कैटेगरी उसको बांटा जाता है। ओके। सो आजकल हम एनपीए के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। एनपीए अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, पहले तो ये बताइए। इज मैम एनपीए एनपीए गुड और बैड? पे डेफिनेटली बैंक्स को लॉस करते हैं। बैंक्स को लॉस होगा तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो मैम और अलग से उसके लिए फिर रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह लानी पड़ेंगी, तो वो मैम डेफिनेटली इट इज बैड फॉर बैंक्स। ओके। सो आजकल कुछ मतलब कोई बॉडी आई है कुछ कि एनपीए हम कम कर दे, एनपीए को जैसे पैसे रिकवर कर ले एनपीए वाले? कौन यस कर मैम। रहा है आजकल? अर्लियर इट वाज मैम ARCIL, Asset Reconstruction Company
Limited. Now a new statutory body is post-COVID was NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited. बेसिकली हाँ वो बैड बैंक्स हैं, तो वो एनपीएस को लेते हैं, बैंक से खरीदते हैं, जो स्ट्रेस्ड लोन होते हैं उनको वो सेल करते हैं फर्दर, और फिर उनसे जो भी कुछ रिकवर होता है उनमें वो अपनी मार्जिन्स लेते हैं और बाकी बैंक्स को लौटा देते हैं। बिकॉज इन सिंपल टर्म्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो बस वही बात हो जाती है। तो कुछ पीएसयूज है, कुछ बैंक्स है जिनके मतलब जिन्होंने एनएआरसीएल में काफी अच्छे स्टेक्स होल्ड करके रखे हैं, अराउंड 12% उनके स्टेक्स है। कैन यू नेम द 3 बैंक्स? स्टेट ओन्ड बैंक्स है वो, मतलब पीएसयूज ही है, प्राइवेट नहीं है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। Okay, so these are the SBI, Union Bank of India and PNB. Okay, चलिए आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देन इंटरव्यू हम खत्म करेंगे। Okay, यस so can you give me any one reason why I should not select you? I don't think, ma'am, I'm not eligible to perform in bank. I have all the required qualities, so I think you should select me. Okay, thank you, Miraj. It was nice talking to you. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So first of all, Miraj, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, आई थॉट सो कि बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है, बिकॉज सबने ये इंस्टा पे या यूट्यूब पे चलते चलते वीडियोस देखी होगी कि कोई रीजन नहीं है मुझे ना सिलेक्ट करो। इसकी पूरी वीडियोस देखिए, उसमें एंड में उन्होंने उसको टोका भी था कि यू डोंट हैव टू से लाइक दैट, यू शुड से, बाकी सब भी अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, यू हैव टू से कि मैम, in case you find a more suitable candidate than me, then you can select him or her. Otherwise, I think that there is no harm in selecting him. You can say like that. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीधा ये मत कहो कि मुझे ना करो या मुझे ही करो। There are many candidates जो इंटरव्यू दे रही है। You can say, in case you find a more suitable candidate that is more efficient than me, then definitely you can select him. But other than that, there is no reason that you should not select him. ठीक है, इतना कह दो। बाकी Okay, ma'am. everyone can give their views. Miraj, it was a good interview. हिंदी में ही बात करना, इंग्लिश में बोलने की नीड नहीं है इंटरव्यू में। इंग्लिश में मैंने नोटिस किया आप थोड़ा अटक जाते हो इंग्लिश बोलते हुए। थोड़ा बीटेक ब्रश अप कर लो। बीटेक नहीं आपको याद, अभी पिछले साल किया, अगर 3-4 साल का गैप हो ना वो छोड़ देते हैं, नहीं पूछते बीटेक से क्वेश्चंस या आपकी ग्रेजुएशन से, बट आपकी रिसेंट है तो वो पूछेगी कुछ ना कुछ। कैन आई आस्क समथिंग? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब मेरा भी 2016 में 12th हुआ था, तो उस हिसाब से 2019 और 20 तक ओवरऑल हो जाना चाहिए था ग्रेजुएशन। तो आपका कौन से ईयर में हुआ है? पासिंग आउट ईयर तो मेरा 2020 है, बट वो स्ट्रेच हुआ था 2020 तक ले गए थे। कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो है ना, अच्छा। दैट्स ओके। लास्ट सेम के मेरे एग्जाम्स बहुत लेट हुए थे, वो अराउंड अक्टूबर हुए थे, जो कि मई में हो जाना चाहिए था, बट उस टाइम ओके, पीक था। दैट्स ओके। और एक चलो चीज और वन थी। बाय वन सब बताओ, ठीक है? ठीक है। वन बाय वन, बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। देन उसके बाद यू कैन आस्क द पर्सनल क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द एडवाइसेस, देन आई शैल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हिमानी, यू कैन फर्स्ट गो ऑन। ओके, एक चीज जो थी मैंने नोटिस की कि वो जो करंट मखाना रिलेटेड था, एक करंट अफेयर्स, वो थोड़ा देखना, करंट अफेयर्स थोड़ा और रिवाइज कर लेना। मुझे लगा मखाने का कोई नाम होगा, उससे पहले चेक कर लेना। और थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, दैट्स इट। मतलब आप हिंदी यूज कर सकते हो। और जो इंटरेस्ट रेट्स थी अकाउंट पर, थोड़ी बहुत बैंकिंग टर्म्स भी थी, आप थोड़ा ब्रश अप कर लेना। जो वर्ड आप चूज कर रहे हो ना, जैसे कि मैम ने पूछा था लीडर के लिए क्वालिटी, तो आपने बोला था एरोगेंट, तो आप थोड़ा केयरफुली वर्ड चूज करो, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड मत चूज करो। और एक चीज आप में मतलब नॉलेज तो काफी है, ओवरऑल अच्छा था,
बट मैं कहना चाहूंगी कि मतलब मैम ने अच्छी तरह इंटरव्यू लिया है, अच्छा खासा खींचा, बट शायद जो रियल इंटरव्यू है वो इतना लंबा ना खींचे। तो आप कोशिश करना कि मतलब ज्यादा कम समय में वो आपको अच्छी तरह ज्यादा जान पाए। और एक एक्साइटमेंट एलिमेंट की थोड़ी कमी लग रही थी, मतलब आप जैसे नॉर्मल आप बोल रहे थे इंटरव्यू से पहले आप बात कर रहे थे तो वो ठीक था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आप में मतलब कहते हैं कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी लग रही थी, एक्साइटमेंट की। जी वो ध्यान, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मतलब इंटरव्यू भी ऐसे ही दो जैसे यू आर टॉकिंग टू समवन, लेट्स से यू आर टॉकिंग टू अ रिलेटिव। आप ये मत सोचो कि ही इज अ इंटरव्यूअर, मेरे को डरना है या समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट बी वेरी काम एंड कूल एंड उस वे से आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। कोई मतलब इशू आ रहा था इंटरव्यू देने में? मतलब आप ना बताओ स्टांस कि आपको कैसा फील हो रहा था इंटरव्यू देते वक्त। नहीं, मैं वैसे तो मैं पर्सनल इंटरव्यू मॉक देता हूँ लगभग 2 अल्टरनेट डेज पे। तो हम्म वो मतलब मुझे रिव्यू देते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आप आई कांटेक्ट मिला के बात करते, आप इधर उधर नहीं करते हैं। अभी तो आई कांट से अबाउट दैट ना, क्योंकि दैट इज अ वॉइस कॉल इंटरव्यू ना गोइंग ऑन। So जी I can just tell you about the things you need to learn, और जो चीजें आप जो फैक्ट्स अपने और अच्छे कर सकते हो, लाइक मैकेनिकल का कुछ कुछ चीजें जो होती है ना, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा दैट वाज फ्रॉम द 6th सेमेस्टर। आई थिंक व्हाट यू वर टेलिंग वाज फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, थर्ड और अराउंड दैट सेमेस्टर। उसी टाइम में वेल्डिंग सिखाते हैं ना। जी जी। फाउंड्री क्लासेस होती है जिसमें स्मिटिंग क्लासेस होती है। 4th दैट इज सेमेस्टर में दैट इज इन वेरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट। बेसिक्स। या सो आई वाज आस्किंग फ्रॉम द 6th सेमेस्टर। आपको 6th सेमेस्टर का नहीं याद, आपको 4th सेमेस्टर का याद है? थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रही पूरी बुक पढ़ के फिर से ग्रेजुएशन करो, दैट इज नॉट नेसेसरी। जस्ट छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, मैंने जैसे टॉर्क पूछ लिया, यू शुड नो व्हाट इज टॉर्क। जैसे मैंने आपसे स्पेसिफिक हीट पूछी, स्पेसिफिक हीट आपको पता होना चाहिए क्या होती है या उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैकेनिकल के देयर आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मोस्टली आपसे मैकेनिकल में ना ऑटोमोबाइल रिलेटेड ही पूछेंगे। जैसे सस्पेंशन आपने की होगी, दैट इज इन 6th सेमेस्टर ओनली। लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, एयर सस्पेंशन, ठीक है, इस तरह के जो सस्पेंशन है ये हो गए। या फिर टॉर्क पावर के बारे में हो गया, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज पावर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। या डीजल इंजन क्या होता है, टॉर्क और पेट्रोल की इंजन स्पीड के बारे में हो गया कुछ। तो इस तरह के क्वेश्चंस यू शुड प्रिपेयर देम। इस तरह का कुछ भी आ सकता है, ठीक है, अगर वो आपसे पूछेगी। सी इन टुडेज इंटरव्यू आई हैव आस्क्ड फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्ट्स। मैंने आपके बारे में भी पूछा, आई हैव आस्क्ड फ्रॉम द बीटेक आल्सो, आई हैव आस्क्ड फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर आल्सो एंड लिटिल बिट फ्रॉम करंट अफेयर्स आल्सो। बट उनका क्या स्टांस रहता है, दे जस्ट पिक अ थिंग। जैसे अगर उन्होंने मैकेनिकल पिक कर ली, अगर आपकी वो मैकेनिकल से ही पूछती जाएगी। अगर उन्होंने आपकी बैंकिंग पिक कर ली, दे विल जस्ट आस्क फ्रॉम बैंकिंग, एक पे एक क्वेश्चन आप पे बैंकिंग ही आएगी। अगर जी उन्होंने करंट अफेयर्स पिक कर लिए, दे विल जस्ट आस्क फ्रॉम द रीसेंट अफेयर्स। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स कि कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लो मैकेनिकल की। आई एम नॉट सेइंग कि फुल सिलेबस अब पढ़ने बैठो, जस्ट सम बेसिक्स कि मैकेनिकल आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। ये बाकी अगर पर्सनल की बात करें, जब आपने पर्सनल इंटरव्यू में दिया था, यानी कि जो आपसे मैंने पर्सनल चीजें पूछी थी, दैट वाज वेरी गुड। द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर नेम वाज वेरी गुड, ठीक है, वो चीजें आपको नॉलेजेबल है। अच्छा, आपने अपने फॉर्म के अंदर ना पटना लिखा है, दैट्स व्हाई आज पटना, क्या पटना से है? क्योंकि मैंने आपके फॉर्म में पटना पढ़ा था कि आपने फॉर्म में पटना लिखी हुई है अपनी जगह। देन वो इंटरव्यू में वो आपने मैम इंटरव्यू लोकेशन होगा मैम LHO पटना। ओके ओके, ठीक होम है, तो मधुबनी है मेरा। ओके ओके, बॉर्न इन मधुबनी, चलो नाइस प्लेस। तो बाकी एक चीज ना, मतलब अगर कर पाओ ना इंटरव्यू में, टीवी सीरीज मेंशन मत करो, बिकॉज ना टीवी सीरीज जो होती है ना, इसके बहुत ज्यादा वाइड स्कोप हो जाता है क्वेश्चंस का, जी कि मतलब कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने नहीं पूछे इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपने बाद में स्पेसिफाई कर दिया, या मैंने जस्ट आपसे जॉनर ही पूछ लिया कि मेरे को जॉनर ही बताओ पहले अपना।
तो आप या तो कहो कि आई लाइक टू वॉच दिस टाइप ऑफ सीरीज, वहां पर जॉनर खुद ही मेंशन कर दो, उनको पूछने की जैसे जरूरत मैम ना पड़े। ऐसे बोल सकते हैं इंडियन टीवी सीरियल्स। नहीं, अभी इंडियन में भी अभी बहुत जॉनर अभी आ गए ना, जैसे अभी लेट्स सपोज। हाँ, अभी यस बोलो। रेगुलेशंस की बहुत सारी बातें हो रही थी, ओटीटी रेगुलेट, वो सब थोड़ी बहुत मैंने देख ली थी। क्रॉस नहीं, क्वेश्चंस अगर होते तो अगर शायद। फैंटेसी पसंद है तो भाई फैंटेसी बोलो, अगर डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो डॉक्यूमेंट्री बोलो, इस टाइप का वर्ड यूज करो, उसका नाम अलग अलग नहीं बताने की जरूरत है। यू डोंट नीड टू से द नेम, जैसे लेट्स से कि आई क्राइम। लाइक द साईफाई मूवीज, आई विल जस्ट से आई वॉच द साईफाई मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड। उनको इतना भी पता लगना चाहिए ना इंडिया की साईफाई मूवीज कौन सी है, क्रिस 3 नहीं ना। तो आई विल मेंशन कि आई लाइक टू वॉच सम साईफाई मूवीज फ्रॉम हॉलीवुड। सो उनको इंडस्ट्री भी मेंशन हो गई, उनको जॉनर भी मेंशन हो गया। तो अब वो स्पेसिफिकली उसी एरिया में से आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। ठीक है, यस अगर मैम। उनको नहीं करना वो क्वेश्चन बंद कर देंगे। बाकी फुटबॉल पे अपने फुटबॉलर का नाम लेना पहले भाई, इट शोज दैट यू आर नेशन लविंग पर्सन। अपना फुटबॉलर पहले, बाकी वो सारे लो, फ्रेंच वाले भी लो, दैट इज नॉट एन इशू। फ्रेंच रोनाल्डो जो भी आपने बोला था दैट इज फाइन, अपने फुटबॉलर का भी नाम इंक्लूड कर दो बस। ठीक है। ओके मैम। ओके। एक टेक फेस्ट वाली बात हुई थी जिसमें मैंने पूछा था आपने इसके अलावा भी कहीं पार्टिसिपेट किया, आपने पहले नाम दिया, आई थिंक आई थॉट कि आपने इनमें पार्टिसिपेट किया है, देन या आपने ऑर्गेनाइज किया, देन आपने कहा ये भी हुई थी कॉलेज में, फिर आपको मेंशन करने की नीड नहीं है उसको, अगर कॉलेज में हुई थी आपने पार्टिसिपेट थोड़ी किया उसमें, आपने यस ऑर्गेनाइज मैम। नहीं ना कराई थी वो, तो उनका नियम लेने की नीड ही नहीं थी फिर। उस वे से मतलब मुझे लगा पहले कि आपने उसमें शायद ऑर्गेनाइजेशन कराई है या आपने पार्ट लिया है, क्या किया है। वो मैम तो मैं ओवरऑल उसको ऑर्गेनाइजर में एक मैं भी था ओवरऑल में। हम्म मेरा मैं बोल सकते हो वहां टेक पे से तो। रिलेटेड टेक से रिलेटेड जो भी था, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजर में मैं भी था, एक 5-6 ओके। मेंबर्स के ग्रुप में। हाँ, तो यू कैन मेंशन दैट कि इस तरह के और इवेंट्स हुए थे जिसमें मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लिया था। क्योंकि जी जैसे अभी मैंने आपसे डीपली पूछा ना कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या पार्ट किया था, जैसे आपने बताया मैंने गेम्स में किया था वो टेक फेस्ट में, इसी तरह से वो पूछ सकते हैं। सो हमने झूठ नहीं बोलना किसी में भी, आपको जिसमें जी। आपने लिया उसमें बताओ। बाकी यू कैन ऐड इन टू डैट कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर पूछ रहे हैं, अगर आपने नहीं किया, यू कैन जस्ट ऐड कि सर आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज थिंग्स, मैंने पार्टिसिपेशन से बहुत की है। और जी इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ी चीजें मेरे को लगा कि मतलब बहुत जल्दी खत्म कर दिया आपने इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं बताया मेरे को, अलग से क्वेश्चंस पूछने पड़े इंट्रोडक्शन के अलावा, लाइक स्ट्रेंथ वगैरह, गोल वगैरह। एक गोल ऐड कर दो चाहे एंड में कि आपका क्या गोल है लाइफ से, गोल गोल कर गोल सकते हैं ना। गोल वगैरह मैम वो मैंने अपनी नहीं, फैमिली गोल नहीं बैकग्राउंड कर से। सकते, बट स्ट्रेंथ और वीकनेस करना पड़ेगा। और हम्म एक आपने फैमिली का क्या बताया था इंट्रोडक्शन में। वो मैंने ऐड एक किया हुआ था अपने, जब स्टार्ट किया था तो टीचर ने बोला भूल गए। कि रिफ्रेन अच्छा टीचर फ्रॉम ने इट। बोला। हाँ, बाद में वो अगर खुद पूछेंगे तो तब उनको बताना, फादर की क्या सोर्स ऑफ इनकम है, मदर की क्या है, भाई बहन इन सब के बारे में बताना। ना पूछे हम्म तो मत बताना, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। हम्म। बट ना स्टिल इसीलिए जैसे डिटेल अगर में हम तो नहीं, इनकम वगैरह स्ट्रेंथ और तो वीकनेस नहीं को होता, बताना। बट आप बेसिक इनकम वगैरह बता नहीं सकते हो कि पूछते, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या एंड व्हाट अबाउट टू योर फादर्स ऑक्यूपेशन, बस इतना बताना है। बट इतना डिटेल में नहीं जाना फैमिली बैकग्राउंड में। और यस ना ही वो जी। इनकम का कुछ पूछते हैं, आई थिंक सो। ना yes सोर्स ऑफ they इनकम मतलब never व्हाट ask इज about हिज the income. ऑक्यूपेशन। Yeah, source यस of income, यस that is the occupation. They may ask that what your father do or what your mother do, but इसके अलावा वो और कुछ नहीं एक्चुअली पूछेंगे। वो फॉर्म पे मेंशन है तो इसीलिए मैंने भी हटा दिया था इंट्रो में से। फॉर्म पे तो आपका नाम भी फिर भी मेंशन है, बताना है फिर भी भाई हम आपको, नाम दे रहे हैं ना इंट्रो में। फिर भी आपको बताना है। या ऐसा नहीं है, जो फॉर्म पे होगा वही बताना है आपको। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड स्ट्रेंथ्स इन योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि यस, स्ट्रेंथ्स भी आपको स्पेशली पूछी गई थी। स्ट्रेंथ्स तो आप ऐड कर सकते हो अपनी इंट्रोडक्शन में। जी। मैंने इंट्रोडक्शन का ना एक आपको बताया था वे कि आपने इस वे से इंट्रोडक्शन करनी है। आपने स्टडीज भी मेंशन नहीं की, वो भी इसलिए नहीं की क्योंकि फॉर्म पे मेंशन थी। ना स्कूलिंग में मतलब वो बोल रहे थे कि वो अगर 45 से 60 सेकंड से ऊपर गया तो वो
बोर हो जाता है ऐसा कुछ, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट आई हैव डन माय स्कूलिंग इन अभी एक मधुबनी। मिनट कहाँ रुक गए। 45 आप सेकंड बहुत बोर है अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप बोर होने वाला काफी है, फैक्टर ही आपने आप मैं बोली कहाँ थी। अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैं यही बोलना चाह रही थी कि जो एक्साइटमेंट की जो कमी लग रही थी ना, वो सब बोर्डम सा फील हो रहा था। और आज से पहले जैसे कि हमने देखा एक लड़की का भी और एक लड़के का भी इंटरव्यू, तो वो जो है वो कनेक्ट अच्छी तरह कर पा रहे थे, मतलब बोर्डम नहीं हो रहा था। तो मैं यही बोल रही थी कि थोड़ा एक्साइटमेंट। इंट्रोडक्शन ज्यादा लेंदी भी नहीं होनी चाहिए। यू आर राइट कि वो मतलब आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ज्यादा, बट आपकी इंट्रोडक्शन ना ब्रीफ एंड कंसाइज होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे पॉइंट्स ऐड करो जो उनको लगे कि मतलब वो आप में इंटरेस्ट लें। इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचने की जरूरत है, बट आपको वो चीजें मेंशन करनी है जो नेसेसरी है। लाइक आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताओगे तो वो उससे क्वेश्चन पुट करेंगे आपको, वो अपनी आपकी स्ट्रेंथ्स में भी इंटरेस्ट लेंगे। बट बाकी चीजें जो फैमिली वाली हैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी हॉबीज और आपका गोल, ये चीजें ऐड कर सकते हो। ज्यादा लेंदी भी नहीं है कि बहुत चीजें आप एक्स्ट्रा बता रहे हो अपने आप में कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप तो ये बता रहे हो मैंने ये भी किया है ये भी किया है, वैसा नहीं होना चाहिए। बट ब्रीफ होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, ज्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। सो एक बार आप अपनी हॉबीज वगैरह और क्वालिफिकेशन जो है ना वो अच्छे से ऐड कर लेना। बाकी फैमिली का बेशक आप ज्यादा लेंदी में मत जाना। जी व्हाट यू कैन डू इज, आप एक पेपर लेके अपनी एक इंट्रोडक्शन लिखिए, देन यू कैन स्टार्ट अ टाइमर ऑन योर मोबाइल, एंड देन यू कैन नोट कि आपकी इंट्रोडक्शन कितनी बड़ी हो रही है या कितनी छोटी हो रही है। देन यू कैन एडजस्ट योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, यू कैन सेंड मी एंड देन आई विल मेक द अकॉर्डिंग चेंजेस। ठीक है, अगर कुछ लगेगा मुझे कहीं गलत है देन आई विल सजेस्ट यू द चेंजेस। And ओके। one more thing, when you have been asked about mechanical questions, then you said directly no. आपने कहा कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैंने पढ़ाई नहीं की है, मतलब मैं टच में नहीं हूँ। ऐसे आई थिंक डायरेक्टली उनको नो भी नहीं कहना चाहिए। समटाइम्स दे विल आस्क कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, pick one subject that is favorite and please go through about it. मतलब just take an overall idea, okay, just a brief introduction, you have some basic knowledge. तो बट आप डायरेक्टली मत बोलना कि मैं टच में नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, आई कांट आंसर। ये जो एक यस। नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, अगर वो पहले पूछते आप, भी हैं आपको हाँ, क्वेश्चन एंड यू डोंट नो अबाउट इट, देन यू कैन से दैट सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट यू कांट से डायरेक्टली नो। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो फेवरेट सब्जेक्ट ही पूछेंगे, देन यू कैन टेल हिम योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन यू कैन हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दैट, सो यू कैन आंसर इजली आई थिंक। बट ऐसा मत बोलना कि मैंने टच में नहीं हूँ या मेरी पढ़ाई आई कांट आंसर, ऐसे नहीं बोलना है आपको। कोई क्वेश्चन है तो आप ये भी बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। बट फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो उसके बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू ऐसे पढ़ जाना, बाकी तो सब ठीक था, बस थोड़ा सा ये बेसिक सा देख लें। यस, जस्ट मुझे भी एग्जैक्टली, जब मैकेनिकल जैसे में आपने थोड़ा सा बोला लगा। ना, हाँ, हम्म। जैसे ऐसा नहीं मैम है ने कि आपको पूछा कि मैं मैकेनिकल का आपसे टेंशन पूछती लेना हूँ। है कि आपको सब कुछ होना चाहिए। हो सकता है हाँ, वहां पे ऐसा मेंबर्स ही नहीं है। ऐसे हो जो, नहीं कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो मेंबर्स है ना, कई बार होता है कि वहां पे कोई आईटी का बैठा है, अगर आईटी का कोई वहां पे बीटेक स्टूडेंट है, तो हो सकता है वहां पे कोई ऐसा मेंबर है जिसको आईटी की काफी नॉलेज है, तो वो आईटी के क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल के केस में इतने चांसेस नहीं है कि मेंबर्स को काफी डीप नॉलेज होगी तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो वो यही पूछ सकते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे तो व्हाई यू ऑप्ट फॉर बैंकिंग। तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना कि आपने मैकेनिकल से बैंकिंग ही क्यों चूज किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज आप कैसे बैंकिंग में यूटिलाइज कर सकते हो, थोड़ा इस बारे में प्रिपेयर रहना। बाकी तो वो इतना डीप में नहीं जाएंगे। जी बस बाकी ठीक है, बीटेक के रिलेटेड बस यही है, जस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कर लो। देखो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेराज। जस्ट द थिंग इज, अगर जैसे लेट सपोज उन्होंने आपसे डायरेक्टली भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको नहीं आता, आपने पहले क्वेश्चन में बोल भी दिया कि सॉरी आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल इट, तो फिर वो आपसे पूछेगी। स्पेशली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा है, फिर वो खुद ही पूछ लेते हैं भाई अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, अगर वो जी स्टार्टिंग में नहीं भी पूछते तब भी मत घबराना।
ओके आई तो थिंक इतनी किसी ने पैनिक देने सिचुएशन कभी किसी के लिए क्रिएट नहीं करते हैं, वो काफी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। सो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि आप मैकेनिकल को लेके ही वहां पैनिक हो जाओ और कॉन्फिडेंस लूज कर दो अपना। या राइट। आनंद सर आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, तो वही है, क्या बोले। बट मेरे को एक बात लगा कि एक एक वर्ड के बाद भाई आपको सोचना नहीं है। आप वो अगर आपको जब क्वेश्चन देना तो आप पहले उसी टाइम आप सोच लो कि आपको क्या बोलना है। उसके बाद फिर आप एक फ्लो में बोलो। रुक रुक के आपका लग रहा था कि आप ऐसा बोल रहे हो, वो चीज थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए। तो बीच में ज्यादा मैं लंबा तो पाउज उससे एक क्या होता है, उस एक दो वजह से क्वेश्चन में जो मैं श्योर नहीं था। इंटरव्यूअर होता है ना उसका इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाता है। और खत्म हो एक जाता चीज है। मैंने ये भी देखी थी कि जैसे मैम ने पूछा था मैकेनिकल के लिए तो आपने डायरेक्ट बोल दिया आई कांट आंसर। तो अगर जो इंटरव्यूअर होता है मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना तो वो थोड़ा ऑफेंड सा हो गया कि मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही बोल दिया आई कांट आंसर। और मेरे को एक चीज वहां पे ये लगा ना, जो आपने बताया कि मैं यहाँ पे फेल हो गया था तो इसके बाद पापा ने ये गार्जियन ने बोला तो मैंने ऐसे कर लिया, वो थोड़ा सा आप लाइन को और बेटर कर सकते हो, उसका जगह कुछ अच्छा यूज कर सकते हो। हेलो। हेलो। हाँ यस। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपने जो बताया ना कि मैं यहाँ फेल कर गया, फिर मेरे गार्जियन ने बोला तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लिया, मैं दूसरे पे आ गया। उस लाइन को आप थोड़ा बेटर कर सकते हो, या फिर उसके जगह आप कुछ दूसरा लाइन रिप्लेस कर लो। लाइक यू तो कैन मैंने से दैट दो लाइक तीन यस आंसर यू मैंने कैन प्रिपेयर से। किया हुआ था कि हाँ मैकेनिकल से इंजीनियरिंग इज बेसिकली सर्विस सेक्टर, उसमें सर्विसेज ही होती हैं। एसबीआई का मेन वर्क भी सर्विस सेक्टर ही है, पूरा आईटी बैकग्राउंड है, तो मैं वहां ज्यादा कनेक्ट कर पाता। इसी ये आंसर मैंने प्रिपेयर किया तो बोला नहीं मैंने। आप इसको ज्यादा बेटर बोल सकते हो, ये नहीं बोलना कि मेरे गार्जियन ने बोला तो मैं इधर आ गया, फिर वो आपका वहां पे खत्म कर देगा कि नेगेटिव हाँ भाई वो पॉइंट बंदा शो आना होता है। चाहता था सही में लेकिन गार्जियन के प्रेशर से आ गया। तो ऐसा आपको बस उसको फील कराना है कि नहीं, मैं खुद आना चाहता था इसलिए मैं इसके लिए मैं पूरी तरह से इसके लिए डेडिकेटेड हूँ। अच्छा, तो अपने गेट अटेम्प्ट वगैरह नहीं मेंशन करना है। मैं नहीं वो पहले नहीं उसकी मैंने उसके नीड लिए ही तैयारी नहीं किया। है इंटरव्यू में। हम्म। देखो यू उस कैन स्टिल मेंशन, ऐसी भी कोई बात नहीं आप मेंशन नहीं कर सकते, बट उसको ना फेलियर के कहने बारे में का मुझे भी तो जहाँ एक तक ना लगता है नहीं बताना तरीका चाहिए। होता है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं है ना, एक रेस्टोरेंट है ढाबा, ठीक है, उसी के सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला हुआ 5 स्टार रेस्टोरेंट है। दोनों दाल मखनी दे रही है या दोनों खिचड़ी दे रही है, लेट्स सपोज ढाबे की खिचड़ी 100 रुपए की, 5 स्टार की खिचड़ी 500 रुपए की। दोनों को प्रेजेंट करने का स्टाइल डिफरेंट। आपने उसी घुमा के उसको प्रेजेंट करना है ताकि आपका आंसर सजाई हुई प्लेट की तरह लगे। ठीक है, मतलब आंसर को ना अपना प्लेट पे सजा के देना है। जी। दैट्स व्हाट एवरीवन इज ट्राइंग टू से। कि जैसे अगर आप ये भी बोल रहे हैं ना कि हाँ भी आपने गेट अटेम्प्ट किया था, you can just say that you had interest in the public sector, so that's why for the mechanical also you have given gate exams for getting the job in PSU sector, and since you were not succeeded in that, that's why you moved towards the banking sector since you had a USP in the aptitude sector. ठीक है, you can say like that. And also I have a very good analytic skill, so I thought that that would be a USP of mine in the banking sector, that's why I choose the banking sector. You can say something like this. ठीक है, that would be very decorative answer rather than कि मैं fail हो गया and I asked from my guardians and they advised me to go to the bank sector. इसको तो एक दो बात तीन का हाँ, एक ये बात लाइन का थोड़ा और सुनने में भी अलग लगेगी इसलिए। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे आपको वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो आपने एक लॉन्ग पॉज नहीं लेना है सोचने में। मतलब अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू आंसर देन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ओके। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू आंसर इट एंड यू हैव नो आइडिया, देन आप ना वहाँ गेस वर्क मत करना कि उनको गलत आंसर बोलो। आप बोल सकते हो डायरेक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आपने पॉज लेके सोचने नहीं लग जाना है। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मत बोलो, उसका सॉरी बोल के आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है तब आप कॉन्फिडेंट होके आंसर दो, बट पॉज लेके सोचना नहीं है वहां पे। जी। मतलब if you are just giving the answer ना, जैसे if you are doing the guesswork also, you can say I'm not very sure but I think this is the answer.
ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो, उनको लगेगा भी कि हाँ चलो इसने ना गेस किया, ये श्योर नहीं था इस आंसर के लिए, चलो फिर भी उसने अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन अगर आप तुक्का लगा रहे हो, आपको पता है अंदर से कि आई एम जस्ट गेसिंग, और आप बता भी नहीं रहे कि मैं गेस कर रहा हूँ और गलत आंसर बोल दे रहे हो, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। लेकिन अगर आप अच्छे से बता रहे हो ना, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट बट आई थिंक दिस इज द आंसर, सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा उनके ऊपर। बाकी ओवरऑल I think that for the personal interview you are totally prepared, but for the mechanical part you have to work a little hard. And for the banking sector, get some things sharp, like you don't have very deep knowledge, you have knowledge about the banking sector, like you know the basic terms, but you don't know some things, like there was letter of credit, that is a very famous term in banking, so if you don't know something, so you can watch some videos or you can read the book of banking awareness, that would brush up your facts. When is your interview, by the way? 11th Feb. 11th Feb. Okay. Today is 9th. You can just focus on the banking awareness type. Okay. And for the mechanical, what you can do today is just find a playlist, very good playlist on YouTube, that is for the mechanical sector. Yes, You ma'am. can see that playlist and brush up the facts of the basic mechanical engineering. Okay. And you can also read a bit about your favorite subject. You mentioned your favorite subject, you also mentioned what is done there, so you can read a bit about it, because I was not very aware of those things about the smitting or molding or foundry, Yes, ma'am. unless I would have asked the question from that also. So there might be an interviewer who is from mechanical background and they might ask the questions from that also. So अगर favorite subject से कोई बोल रहे हो, you can prepare about that favorite subject and little bit about banking, that's all. Okay, thank you. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. Thank you.